that other key. Okay, so welcome in the session DFO interview. What should be the preparation strategy to clear interview in the prestigious organization? As this DFO means Deputy Field Officer. This is ZD post, level 7 post, and here you have to work within India, outside India. This post covers under Cabinet Secretary, but I think you all know what you have to do under this post. So the first question arises here by one of the candidates. What should be the difference between DFO interview and CAPF interview? CAPF interview is mostly taking regards of your current affair related to India, Indian diaspora. Also, CAPF comes under Home Ministry. So everything comes under the Home Ministry to become an assistant commandant. That must be taken care of. But in the case of DFO, you have to work within India or outside India. So here, what is most important thing is your affinity, your bonding with the international relations current affairs. So the first thing you have to take care of in DFO, you have to be very compatible with India-Bhutan relationship, India-Canada relationship, India-America relationship, so forth. So those who are keenly interested in reading books, reading novels, or watching movies related to such things, वो सारे के सारे बच्चे सर एक सेशन दे तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनकी मूवीज देखना हॉबी है, जिनकी हॉबीज है वेब सीरीज को देखना, थ्रिलर की मूवीज को देखना, या फिर एक्शन मूवीज को देखना, इंटेलिजेंस के बेस पर चीजों को देखना, ऐसे लोगों से इस तरह के सवाल जवाब ज्यादा पूछे जाते हैं और उन्हीं के सिलेक्शन के रेट्स भी सबसे ज्यादा होते हैं. क्योंकि अगर आप डीएफओ को सिर्फ सिलेक्शन के पर्पज से देख रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग एट डीएफओ इंटरव्यू with a view to being selected in this, then this is not a job for you. You will categorically be discarded and rejected in the interview only. You will only be selected whenever they see that you are the perfect candidate. You will not leave the department or organization anyhow. अगर आपके अंदर वो ये देख लेते हैं कि आप डिपार्टमेंट को छोड़ने वाले नहीं हैं, तब ही वो आपको सेलेक्ट करेंगे. दो देयर में भी सम इंस्टांसेस इन माय पास्ट रेफरेंस कि लोगों को जीके के, जीएस के या कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कम आते थे. देयर आर सम एविडेंस इन माय प्रीवियस बैच और द सेलेक्टेड वंस. द स्टूडेंट्स वर नॉट होली और पार्शली activated for their knowledge related to state, nation, or any specific country, or the relationship between that country and India. But their willingness to join the department or organization was very high, was at the helm, was at the peak. And that's why they got selected, and now they are under training. They have done their various levels of training so far, and now they are not posted anywhere, but continuous training and posting are being given to them. Whenever I talk to them through any media or medium, they are very happy to join this department. Also, there may be some privacy and secrecy whenever they talk to their parents, when they talk to their friends. They are not allowed to share their places where they are currently or where they are located. So I think everything is clear under this. If you do have any doubt, then please share your concern in the chat box, so that without taking the name of you, I must take that query on my personalized level and get back to you. So the first question is posting location kahan hoga, sir? The posting can be anywhere in India, and yes, outside the India.
because this department or this organization is known for external intelligence agency, and whenever we come through the term of external intelligence, it means that you have to gather, locate or allocate the intelligence and counterintelligence from various nations. Pay level is level 7. This is just equal to your IB, ACIO or CAPF. How much safe and secure the job is if you are applying your brain meticulously, if you are very intelligent to apply all the things which have been taught to you in the training period, then the job is very safe, very secure, and you will get the utmost exposure being the lone wolf. आपको सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है, बेशक आपको लॉन वुल्फ या थोड़ा सा लो प्रोफाइल होकर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इस जॉब के अंदर लर्निंग बहुत अच्छी है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, और कॉन्टिन्यूअस आपकी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, आपकी ट्रेनिंग के अंदर जितना आप परफॉर्म करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दैट ओनली। परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट के साथ इस डिपार्टमेंट में काम होता है, और आपके ऊपर एक तगड़ी निगाह रखी जाती है कि कितने सेफली और सिक्योरली आप काम को कर रहे हो। दोज हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन हवाबाजी, जो लोग थोड़ा सा हवाबाजी में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए जॉब नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा नुकसान में रहोगे। दोज हु आर ऑन एयर्स, यस अब तो रॉ में हो गए, अब हम DFO बन गए, अब हम एक्सटर्नल इंटेलिजेंस में आ गए, ऐसे टाइप की अगर आपको फीलिंग आती है, then this job is not for you, then you are harmful factor for the department, and you should leave the department for the sake of the nation, for the sake of the security of the nation. So there is a great learning exposure. Also, you will be under constant training. Just after that, there may be some physical training, mountain training, digital training, cyber training, one more is your mental training, लैंग्वेज ट्रेनिंग, अलग अलग लैंग्वेज सिखाई जाएगी आपको, तो अलग अलग तरीके से आपको लैंग्वेज पर भी काम करना पड़ेगा। 70 to 80% you can stay with your family in the initial 5 to 10 years. There may be some instances where you cannot live with your family, you cannot stay your family with you, तो थोड़ा सा इस तरह की भी चीजें हैं। तो मोस्टली सारी की सारी तरह की ज्वाइनिंग या पोस्टिंग या लोकेशंस आपके पास बनती है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बातें हैं। इज देयर एनी पॉइंट ऑफ कंसर्न सो फार? काइंडली प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड क्वेश्चन मी। अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं और मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल बनता है, जितनी भी बातें यहाँ पर मेरी तरफ से थी, मैंने अभी आपको इसका फर्स्ट पार्ट बता दिया है क्या है। उसके बाद इंटरव्यू के अंदर क्या होगा उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले आप मुझे यहाँ तक का क्वेश्चन रेज कर लीजिए, या तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए या फिर यहाँ पे। व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोस्ट? वर्क प्रोफाइल इज यू हैव टू गैदर इंटेलिजेंस, you have to learn the systematic approach of gathering intelligence. So okay, Mr. Patil, so whatever you have to do. How much annual leaves is given in this organization? How much annual leaves is given in this organization? This department is basically giving you ample opportunity that you may not get most of the leaves with the consistent factor. Why? Because your training doesn't demand any leave or sick leave, but just after the training you will be allowed to have 2 months or 3 months directly at your home, but for the initial 2-3 years you cannot expect the leaves for much duration of time. Mr. Singh, you have joined late. एक बार फिर से brief join explain कर दो. So Lokesh, just we have put forward the things. The session is on the recording mode, so you will get the recording thereafter. Okay. Any other question? Work-life balance. So if you are, what is the life here? If you are very much committed to serving the nation,
very much committed to sacrificing your life for the nation, then this job is for you, because each and every time you have a clear notion and idea how to protect the country through any medium from your enemies. There may be any threats, there may be any harms which you have to ponder over them. So the even in the intelligence bureau, even in the CAPF, the life is not so much easy and comfortable and cozy. Why? Because anywhere we are having the defense or any organization related to protect the things, तो वहां पर आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ा. जब पूरे देश को बचाने की बात है तो वहां पर आपको थोड़ा सा जाग कर रहना है, अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है. और वहां पर आपको 24/7 की इस तरह की जॉब होती है जहाँ पे कई बार आपको नींद लेने को भी नहीं मिलती है. तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि देयर इज अ वर्क लाइफ बैलेंस इन दिस जॉब. तो मिस्टर पी, ओके, any other question? Kindly ask me any type of question you are having, please, because whatever I am giving you, they are the clues from the selected students and my own experiences. सर इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना कितना आसान है? सपोज फॉर एग्जांपल मेरा सीपीएफ में हो जाता है और इधर भी हो जाता है, तो कितना इजी रहेगा लीव करना वंस आई जॉइन इट? इजी है, इजी है, वेरी इजी. और दिस हाउ टू लीव दिस डिपार्टमेंट, ये फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग पर बता दिया जाएगा, so that you can leave the department anytime. But if you are being selected in any higher post or equivalent post, what areas needs to be prepared for the interview? I'm coming, Mr. Janjire, here only. So this is the first part. How is the job? So the job is very crucial, very critical. This is not a safe and secure job unless you are applying your brain and mentation or mind. Okay. And if you are keenly wanted to be selected in DFO as a DFO, अब वो लोग बच जाओ, बाकी चले जाओ, क्योंकि अब जिन लोगों को इंटरव्यू सच में देकर आना है, सेलेक्ट होना है फाइनली, वो लोग यहाँ पर रहो, बाकी अब जाओ. Why I am so much bitter, so much hurt? क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने भी चले गए, जस्ट यू गेन द एक्सपीरियंस, विदाउट सिलेक्शन उस एक्सपीरियंस का कोई काम नहीं है. तो नेक्स्ट पॉइंट के पे देखते हैं, What could be asked in interview, या पिछले साल में बच्चों से क्या क्या पूछा गया है. First of all, the interview will run from the duration of 30 minutes to 45 minutes. आपका जो इंटरव्यू चलेगा वो 30 मिनट से 45 मिनट के बीच चलेगा. एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 10 to 15 मिनट्स भी चला है, बाकी इंटरव्यू पूरा लंबा चौड़ा चलने वाला है. सेकेंडली, मैक्सिमम इंटरव्यू के क्वेश्चन इंग्लिश में होने वाले हैं. अगर आप उसका जवाब इंग्लिश में देते हैं तो प्रेफरेंस अच्छी जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी जाती है. लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस को फुल रखते हुए अगर हिंदी में भी इंटरव्यू का आंसर दे रहे हैं, इट इज ऑफ नो केस, नो एक्सक्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो. क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर अभी 10 दिन में 15 दिन में एक भारी भरकम काम करना मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है. इट मे बी अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर यू. इंटरव्यू के अंदर हो सकता है आपके पास इंटरव्यू में 3 लोग होंगे और तीनों लोग अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऑपरेशंस के अंदर, किसी देश के अंदर, किसी विदेश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जगह पर रहकर आए होंगे, पोस्टेड होंगे, और ऐसी चीजों के अंदर अगर वो होंगे तो उनका एक रिच एक्सपीरियंस होगा और वो कैंडिडेट के अंदर क्या क्या निकालना है उनको बड़ा अच्छे से पता होता है कि हमें किस टाइप का कैंडिडेट चाहिए. उस टाइप के कैंडिडेट अगर आप हैं या नहीं, ये सिंपली आपसे बात करके पता लगेगा, 1-to-1 जूम सेशन पे पता लगेगा, आपके अपने बॉडी लैंग्वेज से पता लगेगा उनको, आपके अपने स्माइलिंग नेचर से, कॉन्फिडेंस नेचर से, और जो भी आपकी आईज है, लिप्स है, हैंड के मूवमेंट्स है, उससे पता लगेगा. साथ ही साथ आप कितनी नॉलेज को इनहेरिट करते हैं और किसी भी तरह के सिचुएशनली डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने पर आप कितना कॉजी एंड कंफर्टेबल उनको फील कराते हैं, दैट will become the matter of your selection. So how much confident you are,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कुछ इंट्रोडक्शन के सवाल पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन में हो सकता है टेल मी समथिंग अबाउट यू, जिसमें आपसे पूछा जा सकता, जब आप जवाब देते हो तो आप अपने नाम को बताते हो, तो आपके नाम का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, या आपके फादर मदर का प्रोफेशन क्या है, उस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई बढ़िया सा सिचुएशनल क्वेश्चन डेवलप किया जा सकता है। जैसे पिछले साल एक स्टूडेंट हमारा, उसके फादर रेलवे के अंदर बड़ी जीएम थे, जनरल मैनेजर थे रेलवे बोर्ड के अंदर, तो उनसे पूछा गया कि रेलवे के थ्रू इंटेलिजेंस गैदरिंग किस तरीके से आसानी से की जा सकती है, कुछ ऐसा सवाल पूछा गया। तो कुछ इससे रिलेटेड था। आई विल डिस्कस इट इन डिटेल इन योर क्लास। सो आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम विच सिटी और स्टेट यू बिलोंग टू, वहां से भी एक सवाल अच्छा निकाला जा सकता है कि वहां पे फेमस क्या है, इनफेमस क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, वहां पे करंट में जो मुद्दा चला वो क्या है, और पिछले 2-3 साल के अंदर डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम, या फिर लॉकडाउन या कोविड सिचुएशन के अंडर में ऐसी कौन सी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हुई थी जो वहां पर पूछी गई है या वहां पर बहुत तरीके से सॉर्ट आउट की गई है, इसके ऊपर बड़ी अच्छी सी बातचीत हो सकती है, और ऐसा हुआ है। सो ये इंट्रोडक्शन के सवाल होंगे। अभी आप में से कोई भी एक पर्सन जो इंट्रोडक्शन अगर मैं उससे पूछूं, तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड अगर आपसे कोई सवाल पूछे जाएं तो मैं आपसे 1-to-1 करना चाहता हूं। अगर कोई इस तरह का सैंपल मेरे साथ करना चाहे तो आई विल वेलकम यू नाउ। मैं अभी के अभी आपको वेलकम कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इंट्रोडक्शन के बाद अगली बात आती है विलिंगनेस टू ज्वाइन। This question must be asked to everyone and they will raise some backfiring questions. वो पूछेंगे आपसे कि आपका सिलेक्शन कितने जगह और हो चुका है, आप साथ में कौन कौन सी जगह पर काम कर चुके हो, फिलहाल आपकी एज क्या है, अभी यूपीएससी में जाने का मन है या नहीं, आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हो या नहीं। हर सवाल वो पूछ के ये कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि आर यू विलिंग टू join this department or not. And here you have to be very strict to your confirmation, to your affirmation, to your commitment that yes, I will, I must join this department. तो यहां पर आपको ये बात बोलने की जरूरत, लेकिन वो चीज जब आप बोलो तो वो आपके कॉन्सिक्वेंट एंड सब्सिक्वेंट आंसर्स के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, हॉबीज के अंदर, एजुकेशन के अंदर वो दिखना भी चाहिए, वो झलकना भी चाहिए। दैट मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू योर एक्शंस एंड रिएक्शंस। बात समझ में आ रही है? यस और नो? से यस और नो इन द कमेंट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स प्लीज। The third thing you have to take care of, hobbies. The single thing here in your biodata or application form, there is no mention of hobbies. And sometimes students forget to prepare their views about their hobbies. Here you don't have to fix your past hobbies in your childhood hobbies. Yes, I used to write poems, I used to gardening, like that. No, what are your current interests and current hobbies, and those interests and hobbies must be related to what they require as a DFO candidate. Let's say, assume if you have a hobby of watching web series, thriller, action, raw, IB, agent, है ना? Name a few movies, Indian movies, Hollywood or Bollywood movies, which are related to these actions and Sir, Baby, Naam Baby, Shabana, Naam Shabana, Agent Vinod, Agent Vinod, Sir, Madras Cafe, Madras Cafe, yes, sir, okay, and Commando 123, sir. Commando 1, 2, 3. Okay, very good, very good. Okay, okay. Sir, So what is 13 my hours. point of what is my point of concern? What is my point of concern is that if your hobbies are related to the interest they want to carry in the candidate, then you are their choice. आप उनकी choice तुरंत बन जाते हैं, और once you become their choice, your propensity
your disposition to be selected in as a DFO will become eventually high. बिल्कुल ये मत सोचना कि सर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑल इंडिया में कितने बुलाए गए हैं, चेन्नई में कितने बुलाए गए हैं, मुंबई में कितने बुलाए गए हैं, कोलकाता में कितने बुलाए गए हैं, दिल्ली में कितने, गुड़गांव में कितने बुलाए गए हैं, ये अलग अलग चीजें. दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक नंबर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, नहीं चाहिए उनको. उनको हर वो बच्चा चाहिए जो विलिंगनेस रहता है. अगर इंडिया के अंदर उन्होंने 500 लोगों को बुलाया है और 500 के 500 उनको लगते हैं कि बढ़िया लोग हैं, तो वो सबको रख लेंगे. और उनको लगता है 500 में से एक भी इस बार काम का नहीं है, वो किसी को नहीं रखेंगे, क्योंकि ये पर्सनल कॉल आई है, इंडिविजुअल कॉल आई है आप लोगों के पास. इसलिए यहाँ पर आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपने कैलिबर, अपने ही टैलेंट के बेस पर जाना है. आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है. दिस इज समथिंग यूनिक फॉर DFO पोस्ट. यस और नो? और अब आपके अंदर कितनी ज्यादा जान आ रही है, कितना ज्यादा एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं, टेल मी समथिंग अबाउट दैट. टेल मी योर हॉबीज इन द कमेंट बॉक्स. आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज चैट बॉक्स के अंदर अपनी दो हॉबीज बताइए विच यू वांट टू मेंशन इन फ्रंट ऑफ देम. और फिर मैं बताता हूं क्या वो हॉबी आपको बतानी चाहिए. अगर बतानी चाहिए तो व्हाट क्वेश्चंस मस्ट बी एक्सपेक्टेड थ्रू दैट हॉबी. लेट्स से एक दो चीजों को हम देखते हैं. महेश जिंजरे, वेरी गुड. मॉडल मेकिंग एंड स्केचिंग कार्टून, बोथ द ऑप्शंस आर वेरी वेरी कैटेगोरिकल, बहुत अच्छी. आदि इज सेइंग वॉइस मिमिक्री, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड. Mr. Thackeray is saying gymming, running. I think they are very general. Watching movies and Hindi web series. This is good. This is good. Gaikwad is saying exercise and sketching, tracking and mobile photography. Very good. Very good, Mr. Kharat. Very good, Mr. Gaikwad. Ganeshwar Patil. I think freestyle dancing cannot be of great use. It is just to relax yourself. It cannot be a very good source of entertainment under pressure if you are engaged in any intelligence gathering. Good, Anurag. Good, Jashmant. Pranit, good. Very good. Okay, fine. Adi, can you please explain what is decluttering? This is a very good word, decluttering. I think there is a very good book, Declutter Your Thoughts. Yes, sir. Just by decluttering the things, I can manage my thoughts also properly, let go the things which are not required, and then keep up the things which are really required, whatever things I am planning for. It means you are a self-inspiring person? Yes, sir. Yes. Though, and they want such persons in their organization who are self-inspired, who are self-satisfied, who are self-made happy, जो अपने आप से खुश हैं. क्योंकि इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है आपको 1 साल 2 साल 3 साल तक पता नहीं किस तरह से रहना पड़ जाए. तब आपको अपनी मौत का डर नहीं लगना चाहिए, तब आपको अपने घर वाले याद नहीं आने चाहिए. आप इमोशनल और सेंटिमेंटल होकर कोई कदम ना उठा पाए. वहां पर आपको सिर्फ इमोशनल नहीं होना, सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होना, वहां पर आपको EI, इमोशनली इंटेलिजेंट होने की बहुत जरूरत है. गुड सागर, brisk walking is very good. So this is something comes under hobbies. So please try to maintain that hobby. Okay, so Mr. Adi, I want to have some question one-to-one with you. So can I ask? Please unmute. Yes, sir. Okay, so what do you understand by the word declutter? Sir, by declutter, Yes. I think that it means that the things which are not required in life, whether materialistically or non-materialistically, we have to segregate the things according to our need and let go the things which are not required, sir. So don't you think whatever you are saying is unrealistic in nature? Sir, I think it is very much realistic,
as individually, whenever I face some odd or difficult situations in my life, it helps me, sir, to calm myself down, have a composed nature of mind, sir. Okay. So in what three circumstances you get angry? Sir, if I see there is a thing which is not as per the ethics of my own values or ethics, then I get angry. Secondly, the things which I see which go against my upbringing and whatever education I had, then I get angry. And there is one more personal aspect. Whenever I am not able to fulfill my own goals, then also I get angry, sir. Oh, so don't you think the ethics are very volatile concept? It is not constant. Whatever you learn in your childhood may vary in your adulthood age. So yes, sir, definitely. As value change, sir, by time and the circumstances, one himself or herself living at that time or situation. But sir, I think when the values are being learned over the period of time, those get strong in one's personality. And I think, sir, that is the time factor is very much important for that case. And for that, sir, I think if someone has been practicing those values and actions over the period of time, they become a part of the Okay, personality. fine. And Okay, fine. yes, sir. Name 2 countries in which you don't want to be posted or located in your life. Mm. This Sir, was the very famous question past year. पिछली बार बहुत ज्यादा लोगों से पूछा गया ये सब. So the countries which I don't want To be posted or to get located. posted. Okay. Sir, one country I would say Iceland, because Okay. Okay, sir, what is the do capital I of need- Iceland? Sorry, sir. So ऐसे ये जीके का क्वेश्चन बन जाएगा. पहले आप एक कंट्री का नाम लोगे, फिर वो उसकी कैपिटल पूछ लेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर वो आपका साइकोमेट्री चेक करेंगे. मतलब आपका टेंशन, आपका स्ट्रेस लेवल चेक करेंगे कि आप डिपार्टमेंट के पर्पसफुली काम आ पाओगे या नहीं. बात समझ में आ रही है? Okay, sir. Yes, सो sir. यू हैव टू रिमेन काम. और जो आप कामनेस पे इतना बड़ा स्पीच दे रहे थे वो रियल में आपका चेक कर लेंगे वहां पे. Okay, sir. ठीक है. सो मैं आपको यहाँ Yes, पे sir. डिस्ग्रेस या डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिखाने की कोशिश की कि साइकोलॉजिकली एक्ट कैसे करना है. और जस्ट रिमेन साइलेंट एंड स्माइलिंग. बस आपको वहां पे स्माइलिंग रहना है, बहुत हंसते मुस्कुराते हुए रहना है. सिलेक्शन होके रहेगा, बस कमिटेड रहना है कि हाँ जी ये जॉब हम लेने आए हैं और लेकर जाएंगे. Yes, sir. ओके, थैंक यू मिस्टर आदि. Thank you. सो कितने लोगों को थोड़ा सा मजा आया? कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर मजेदार चीजें हैं, मजेदार कॉन्सेप्ट है और इसमें और भी खूबसूरत चीज अब आपको सीखने को मिलने वाली. तो किसी भी तरह के अगर आपने इंटरव्यू की अगर प्रिपरेशन कर रखी है या पहले इंटरव्यू दिया है आप में से, ओके, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड एंड यू हैव टू आंसर इन योर चैट बॉक्स दैट हाउ मेनी ऑफ यू हैव सो फार गिवन एनी इंटरव्यू. जो भी आपने इंटरव्यू दिया है वो यस कर दीजिए इंटरव्यू दिया है. और कौन सा इंटरव्यू दिया हुआ है? आपने किसी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का इंटरव्यू दिया है? आपने कोई यूपीएससी का सीएपीएफ का इंटरव्यू दिया है? आपने कोई आईबी का इंटरव्यू दिया है? आपने कोई एनडीए या सीडीएस का एसएसबी दिया है? एक बार मेंशन कर दीजिए प्लीज, क्योंकि जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया होता है. हाँ, आप सब लोगों ने यूपीएससी सीएपीएफ का इंटरव्यू दे रखा है बिकॉज यू ऑल आर मैरिड आउट इट so that you have been called by the department cabinet secretary. सबने सीएपीएफ दे रखा है, 2 एसएसबी भी दे रखे हैं. ओके मिस्टर खैरत, वेरी गुड. ओके, आप सब लोगों की एज क्या है अभी? 25, 26, 27. 2 CSC, IFOS. Oh, Mr. Adi, you are very caliber. You have a great caliber. Great. 29, 24, 26. गुड. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो यंगर कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी देंगे और थोड़े से बड़े को प्रायोरिटी नहीं देंगे. उनको सिर्फ माइंड चाहिए, ब्रेन चाहिए और उनको एक विलिंगनेस चाहिए. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिटेड टू ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट इफ सेलेक्टेड एंड they want to be retired, they want to get retired from the same department, they will not
elsewhere if they selected in the department. Yes or no? तो वो कमिटमेंट आज ही आ जाएगी तो अच्छा है, वरना दिक्कत करेगा बाद में। ओके मिस्टर सिंह, ओके, सिर्फ एक बच्चे ने कहा ये, सिर्फ एक। देख लो, देखो छोड़ के आने के ऑप्शंस हैं, लेकिन निभाने वाली बात है, कमिटमेंट वाली बात है। ओके, नाउ इट दे विल बिकम 4 5 6 लोग हो गए, 7 हो गए। अच्छा, सब लोग चाहते हैं, फिर तो सही है, फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर पे भी मैक्सिमम ध्यान इंडिया की स्टेट के, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, द स्टेट यू बिलोंग टू, आपकी टिप्स पे होना चाहिए कोई भी ऐसी पॉलिसी। अभी राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज आई है जो नेशनल लेवल पर चैलेंजिंग है। दिल्ली के अंदर अगर आप रहते हो तो दिल्ली सरकार की पॉलिसीज कुछ राष्ट्रीय लेवल पर इंस्पायरिंग, ऐसे ही आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो वहां की पॉलिसीज कुछ अलग टाइप की बनकर आई है। तो उन पॉलिसीज के ऊपर किस तरह की बातचीत हो सकती है, देश के अंदर क्राइम, वायलेंस या राइट्स, दंगे से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर आई है। अभी पिछले दिनों में आप देख रहे हो मणिपुर के अंदर जल रहा है सब कुछ। इवन आज 9, 10, 11, 12 को एक एसएससी का एमटीएस का पेपर था, वो पूरा का पूरा रद्द कर दिया 4 दिन के लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड लोकेश, चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। चलिए, तो रादर लोकेश, इस तरह की बातें मेरे से एक बार मेल पे कर लेना। ठीक है। सो करंट अफेयर आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आना चाहिए, और वो डिस्कशन वाला होना चाहिए। डिस्कशन इन द सेंस, जब आप किसी खबर को पढ़ते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके पीछे प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, और आपका ओवरव्यू के बाद आपका अपना व्यू भी क्या है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। करंट अफेयर नेशनल के साथ साथ आपको इंटरनेशनल भी आनी चाहिए। आप में से कौन लोग ये बताएंगे कि इंटरनेशनली इंडिया का कौन से 2 देशों के साथ या 5 देशों के साथ या 10 देशों के साथ सबसे ज्यादा लेना देना है? अब वो लेना देना हो सकता है एक्सपोर्ट के लेवल पर, इंपोर्ट के लेवल पर, डिफेंस के लेवल पर। एक बार चलिए आप लोग बताइए थोड़ा सा अपनी तरफ से इनपुट। सर यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक एंड मॉरिशियस, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, कनाडा, ग्रेट ग्रेट। रशिया। रशिया तो आपको थोड़ा सा पहले बोलना चाहिए, है ना। अब जब रशिया की बात आ रही है तो इज देयर एनी इंपैक्ट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन ओवर इंडिया? टेल मी यस प्लीज। सर, यस सर। और अगर वो इंपैक्ट आ रहा है तो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ दोज इंपैक्ट्स? उस इंपैक्ट्स के अपने आयाम कौन कौन से? क्या वो सिर्फ बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट या इसी से रिलेटेड है, या कोई और भी तरह का एक इंपैक्ट आ रहा है, जिसे हम साइबर वारफेयर कह सकते हैं, जिसको हम टेररिज्म कह सकते हैं, या जिसको हम थर्ड वर्ल्ड के अंदर इसी तरह का हेजिमनी क्रिएट करने की कोशिश कह सकते हैं रशिया की? क्या इस तरह का दिमाग आपका चल रहा है या नहीं मिस्टर अनुराग? यस सर, अभी तक जितना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है सर, उसके हिसाब से हेजेमनी तो है, बट काइंड ऑफ एशिया तक ही लिमिटेड है। एंड उनका हेजेमनी है कि सर रशिया को एकदम कोने में हमने धके, मतलब यूएस ने धकेल दिया है। इंडिया के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है सर, इंडिया को बैलेंस करना पड़ रहा है यूएस, वेस्टर्न को और रशिया को। सर रशिया मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और यूरोपियन और यूएस हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है।
ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच अनुराग, बड़ा Thank you, sir. मार्वलस कंटेंट है। और आपकी आवाज अगर मैं बताऊं तो ये सेलेक्टेड स्टूडेंट जो होते हैं उस तरह की एक आवाज है। एंड व्हाट अबाउट योर स्पोकन इंग्लिश, थोड़ा सा इसका आइडिया और दे दो मेरे को, तो यू हैव अ वेरी फेयर चांस। गॉड ब्लेस यू, Yes, sir. ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. I'm comfortable in English, but since you questioned me in Hindi, हिंदी, so I prefer ठीक to है, answer in Hindi. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। वहां पे भी ऐसे ही करेंगे, एक मैम मिलेंगी Yes. अगर आपको वहां पे, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी मैम होंगी वो, और कहीं किसी देश में एज अ क्या बोलते हैं वो, राजदूत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, Yes. हाई कमीशन रहकर आई होंगी कहीं पे, Diplomacy. डिप्लोमेट होंगी, कोई ना कोई आईएफएस ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विस में, तो थोड़ा सा इस तरह के लोग मिलेंगे वहां पे। चलिए, सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर के बाद इंटरनेशनल अफेयर्स सबसे ज्यादा जरूरी है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप, सब पढ़कर जाना है, सब पढ़कर जाना है। और ये थोड़ा छोटा सिलेबस नहीं है, और ये आपको खुद से करना पड़ेगा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। और क्योंकि आपने अपने सीएपीएफ के पेपर 2 में एसे राइटिंग प्रिपेयर करने के दौरान ये सारी चीजें पढ़ी है, समझी है, बस इनको अब कैटेगोरिकली डिस्कशन के लेवल पर आपको समझना है, याद करना है। इंटरनेशनल अफेयर से तमाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार एक स्टूडेंट से, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि देखिए सिक्योरिटी पर्पस है, उस बच्चे से सिर्फ और सिर्फ कनाडा के ऊपर लगभग 30-40 मिनट तक सवाल पूछे, कनाडा से रिलेटेड, कनाडा की ज्योग्राफी, कनाडा की हिस्ट्री, कनाडा की इकोनॉमी, कनाडा का इंडिया का रिलेशनशिप, कनाडा का इंडिया का बायलेटरल के साथ साथ इनका और किस किस देश के साथ लेना देना है, और स्ट्रैटेजिकली दोनों देश किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के तमाम सवाल पूछे गए, सिंगल फ्लो के अंदर स्टूडेंट ने आंसर दिए, क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट इंटरनेशनल अफेयर्स पर पढ़ने का, समझने का, इंग्लिश कॉमिक, इंग्लिश मैगजीन, इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश न्यूज चैनल, लगातार यूट्यूब पर कुछ ना कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स की चीजों को सुनना, पढ़ना, उस तरह की इंफॉर्मेशन को गैदर करना, न्यूमिस्मेटिज्म वगैरह वगैरह करना, बड़ा उसका शौक था, और उसको वो शौक अपना काम आया। तो अगर आपके पास वो प्रैक्टिकल इंटरेस्ट है किसी चीज का, तो आपके लिए वो यूजफुल बड़ा हो सकता है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, बस आप अपने कॉन्फिडेंस और कामनेस को लूज ना करें। तो हाउस द जोश, हाउस द जोश, यस और नो, आ रहा है क्या? हाई सर, लो सर, कमेंट बोलो, और फिर हम आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। सेलेक्ट हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे। देखो एक बार बस आपकी आवाज का मेरे को पता लग जाता है ना, जब कि आप किस तरह से बोलते हो, बात करते हो, तो लगभग एक कैंडिडेट का लगभग आइडिया हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, मैं आपको अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। फिर आपसे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी मैंने किसी पर्सन से पूछा था कि इफ यू आर लोकेटेड इन दिस 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 और ये करते हो, तो हाउ विल यू एक्ट, हाउ विल यू रिएक्ट, है ना। इंडिया की कोस्टल बाउंड्री से रिलेटेड आपको कौन सी 4 प्रॉब्लम्स नजर आती है। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो मुंबई से रिलेटेड इशू कोई पूछा जा सकता है। होटल ताज पर हमला जैसे हुआ था, अब अगर वो हमला होता है तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे नलिफाई किया जा सकता है। इस तरह के सवाल आपसे बड़े प्यार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो सिचुएशनल क्वेश्चंस की मैं थोड़ी बहुत लिस्ट भी आपको दे दूंगा, कैसी कैसी क्वेश्चंस पूछे जा सकते। ठीक है, चलिए, सो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि पिछले साल के हमारे जो रिजल्ट्स आए थे, और डीएफओ के जो कॉल्स आते हैं वो 2 या 3 तरह के लोगों को आते हैं। एक पोस्ट होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, और उसमें पोस्ट होती है एसीआईओ, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। जानते हैं इसके बारे में आप? उसकी हर 3 या 4 साल में वैकेंसी आती है, इन एवरी 3 और 4 ईयर्स। और लास्ट टाइम इसकी वैकेंसी 2020 में आई थी, और वो वैकेंसी 2000 वैकेंसीज थी। और 2000 वैकेंसीज के अंदर हम लोगों ने एक तरफा, बच्चे लॉकडाउन में थे बच्चे, और खूब सारा पढ़ाया, और हमारे एक बहुत बढ़िया लेवल पर रिजल्ट आया। अबाउट 50% वैकेंसीज पर हमारे स्टूडेंट्स ने क्लियर किया। क्योंकि उसके नाम पब्लिश नहीं कर सकते, उनकी फोटो नहीं लगा सकते, तो हमारे लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रहना उनके लिए जरूरी है।
और जिन बच्चों का 2000 के अंदर रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद में जो मेरिट आउट हुए टॉप 5% बच्चे थे, उनके पास डीएफओ के कॉल गए थे, और उन्हीं बच्चों से डीएफओ से जब कॉल गए तो वो हमारे ही स्टूडेंट्स रहे थे, तो वो मेरे से डायरेक्टली जुड़े हुए थे, तो तैयारी भी मेरे से ही करके गए थे और हमारी अपने पैनल से पूरे के पूरे करके गए थे। तब उन लोगों से जो जो चीजें पूछी गई, बताई गई, जो हमने तैयार करवाई थी, वही चीज मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर कोई भी इफ एंड बट नहीं। और पास्ट रिजल्ट के तौर पर आईबी एसीआईओ के मेरिट आउट्स के पास भी डीएफओ के कॉल जाते हैं। यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर भी जो मेरिट आउट होते हैं, उनके पास भी डीएफओ के मेल्स जाते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विस के एग्जाम के अंदर भी जो कई बार रह जाते हैं मेरिट आउट में, उनके पास भी एक दो बार पिछले दिनों में हुआ है कि डीएफओ के कॉल्स गए हैं। और पर्सनली भी डीएफओ की पोस्ट कई बार कॉलेजेस में जाकर इंडिविजुअली स्टूडेंट्स के को ढूंढकर भी निकाला जाता है, और ऐसा पिछले बैचेस के अंदर हुआ है। अब ये परंपरा थोड़ी सी बंद कर दी गई है। अब ये सीएपीएफ और आईबी के थ्रू जो मेरिट आउट बच्चे हैं, उन्हीं के थ्रू लिया जा रहा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो 970 सिलेक्शन हमारे अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर हुए थे, और इसी के अलावा 11-12 बच्चे हमारे डीएफओ के अंदर सेलेक्ट हुए थे। तो उन्हीं में से जो बच्चे सेलेक्ट हुए, उन्हीं में से ये इनपुट मैंने आपको दिए हैं। सो जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कुछ भी इस तरह की कोशिश करनी है कि हम तैयारी करना चाहते हैं, नेक्स्ट 2-4-5 दिन जितने भी आपके पास अब बचे हुए हैं, तो आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए आप मेरे को अपना कॉल लेटर भेज सकते हैं कि आपका कौन सी डेट को है, ताकि आपके मॉक टेस्ट या वगैरह इसको प्रायोरिटाइज किया जा सके। और इसके लिए मैं प्रॉपर पेड बैच भी है डीएफओ के लिए, जिसमें प्रॉपर बायोडाटा बेस्ड क्वेश्चंस एंड प्रिपरेशन हम तैयार करवाएंगे, जिसके अंदर बेसिक के 5 सेशंस होंगे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के, और साथ में आपके आधे-आधे घंटे के 3 मॉक टेस्ट होंगे, जिसकी फीस 3499 रहेगी। लगभग ये 20 आवर्स का बैच रहेगा। इंडिविजुअल ध्यान दिया जाएगा, पीडीएफ होगा ईच सेशन का, 1-to-1 गाइडेंस होगा, और आप 24/7 मेरे से मिल सकते हैं। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी वगैरह कर रखी है, बस आप मुझे एक इंटरव्यू देकर एक बार पता लगाना चाहते हैं कि सर मुझे किस अप्रोच में काम करना चाहिए, तो आप सिंगल एक इंटरव्यू भी मेरे को दे सकते हो। या अगर आप चाहते हैं कि सर हम 2 इंटरव्यूज देना चाहते हैं, एक बार पहले बेसिक लेवल का और फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल का, वो भी आप दे सकते हो। 1 मॉक के लिए आपको 999 और 2 मॉक्स के लिए 1499 आपको पे करना होगा। पेमेंट के लिए आपको कहाँ जाना है, इसको मैं अपनी मेल पर beatinterview@gmail.com पर दे दूंगा। In every interview, there are some skills which are checked. What are some skills which are necessary for the DFO post? Just your willingness, just your enthusiasm only. Mr. Patil. Any doubt, any question? Kindly raise your hand. Kindly raise your hand, or you can post in the chat box. Any question, any doubt, please. DFO इंटरव्यू के PYQ कहाँ मिल सकते हैं? It is very rare to get PYQ, but I will post 10 or 12 questions in my Telegram group for sure. Any other question? तो मैं लिख लेता हूँ क्या क्या चीज मैंने प्रॉमिस किया आपको, जो मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे तो मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाएंगे, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन सिविल्स, सीएपीएफ एंड डीएफओ। सिविल के डीएफ में आपको बस एक चेक कर रहे होते हैं कि हाँ ये बच्चा सिविल सर्वेंट तो बनने आया ही है, और सेलेक्ट हो गया तो ज्वाइन भी करेगा और फिर छोड़ेगा नहीं। लेकिन डीएफओ के अंदर क्या होता है कि बच्चा ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, उसकी विलिंगनेस ये जरूर लेना चाह रहे होते हैं। तो वहां पर आपको ये विलिंगनेस जरूर देनी है किसी भी फॉर्मेट में। इफ यू फेल टू गिव दैट इंप्रेशन, then this will be something wrong with your personality. Okay,
So one of the students saying some students have received resume form. Here we have to write strength and weakness and hobbies. Yes, आपसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आपका डिटेल्ड फॉर्म है वो डैफ जैसा नहीं है जो यूपीएससी के अंदर होता है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग फॉर्म है। इसके अंदर 3 चीजें मिसिंग होती है, हॉबीज के बारे में, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो इसके अंदर जो भी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बनती है उसको आप लिख लेना। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपके बारे में स्ट्रेंथ या वीकनेस बिना आपसे बात किए नहीं बता सकता कौन कौन सी आपको लिखनी चाहिए। Okay, any other question? Please ask me any question. Posting location anywhere in India, in the world. Pay level level 7. Safe and secure if you apply your brain. Exposure highest, learning highest, training difficult highest. You can, most of the time you can stay with your family, but there may be rare chances where you cannot have your family with you. Okay. So this is something I have. If I have to take one more session or not, what kind of weakness we should write? Just be plain, be confident, be plain, be honest. Okay. देखो, इंटरव्यू में कभी भी ऐसी वीकनेस मत देना जिससे उसको ये इंप्रेशन आए कि ये बच्चा ठीक नहीं है। वो आपके अंदर की सेल्फ अवेयरनेस जानना चाहता है कि आप अपने आप को कितना जानते हो। सब अपनी पर्सनालिटी के स्ट्रेंथ्स को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वीकनेस को कोई नहीं जानता। और कोई भी पर्सन अपनी वीकनेस बताते वक्त कई बार थोड़ा सा रिलक्टेंट या हेजिटेंट हो जाता है, और वो उस पर्सन की पर्सनालिटी की शॉर्ट कमिंग्स बनती है, वो उसको इवैल्यूएट कर रहा होता है। तीसरी बात, जब आप वीकनेस बता रहे होते हो तो वीकनेस बताने के तुरंत बाद अगर आप एक लाइन ऐड कर रहे हो कि मैं इसके ऊपर सेल्फ इंप्रूवमेंट करने में या ग्रोथ करने पे अब क्या कर रहा हूं, तो क्या आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपने रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में रिजल्ट और सॉल्यूशन ओरिएंटेड है या नहीं, वो ये जानकारी भी निकालना चाहते हैं। क्योंकि जब आप इस डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टेड होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज काम आएगी, प्रॉब्लम्स 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 ही दिखाई देंगी। और हर बार प्रॉब्लम्स के बाद आप सिर पकड़ के बैठ जाओ कि भैया मेरे जीवन में तो शांति ही नहीं है। ऐसी पर्सनैलिटी नहीं चाहिए। हर बुरी से बुरी कॉनंड्रम, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में से कोई रिजल्ट, कोई सॉल्यूशन निकाल के अगर आप बाहर आ रहे हो, इफ यू आर कम आउट विद अ सॉल्यूशन, विद अ प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन, इजीएस्ट सॉल्यूशन, फास्टेस्ट सॉल्यूशन, क्विकेस्ट सॉल्यूशन, वो पर्सन उनको निकालने की कोशिश करनी है। दैट इज व्हाई वीकनेसेस आर बीइंग आस्क्ड व्हाइल इंटरव्यू। तो इसलिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस में रहना है, ऑनेस्ट रहना है अपने बारे में, एरोगेंट नहीं बोलना है अपने आप को, अंडर एस्टिमेट बहुत ज्यादा से नहीं करना है। तो इस तरह की चीजें आपको सबसे पहले करने की कोशिश करनी है। अब आपके पास कौन कौन सी वीकनेस हो सकती है कि लैक ऑफ पेशेंस या लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रबल विद डेलीगेशन, या किसी चीज में टिमिडिटी, या लैक ऑफ टैक्टफुलनेस, या फिर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, या फिर वीक इन डाटा एनालिसिस स्किल्स। तो कई बार आपको इस तरह की चीजें यूज करनी चाहिए जिसका डिपार्टमेंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप टिमिड हो, दब्बू हो, कायर हो, आप ऐसी जॉब कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। ऐसे वर्ड्स बोलने से बचें, अवॉइड स्पीकिंग दीज वर्ड्स। तो वहां पे आप बोल दो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है सर, व्हेनेवर वी गेट द एक्सपोजर हम बोलना सीख जाएंगे। अभी हम तैयारी कर रहे थे, अभी हम थोड़ा सा ऐसे थे, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, पर्सनली 2-4 लोग होते हैं तो अच्छे से बात करते हैं, जैसे आप हो, हंसते हुए बोल दोगे। लेकिन अगर बहुत बड़ी भीड़ को अगर हमें थोड़ा सा एड्रेस करना हो जाए, सर वी फील थोड़ा सा हेजिटेंट लगता है, बट सर आई एम वर्किंग ऑन इट। अब ये काम बन जाएगा आपका।
पॉजिटिव, स्माइलिंग वे में बोलना। बात समझ में आ रही है नहीं? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताते रहो। आई एम हेयर अलोन, मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, कम से कम मैं आपकी आवाज भी नहीं सुन पा रहा हूँ। कम से कम अपनी चैट बॉक्स को एक्टिव रखो, कुछ ना कुछ पूछते रहो, बताते रहो, कॉम्प्लीमेंट, कमेंट, जो भी अच्छा बुरा बोलना है अपने बारे में, मेरे बारे में, करते रहो। माइक्रो मैनेजमेंट में कमी है सर, आई एम टू टॉकेटिव, या आई हैव सर्टेनली सम ट्रबल विद माय वर्क लाइफ बैलेंस। इस तरह से कुछ भी एक आधी चीजें बोली जा सकती है, जितनी भी मैंने मेंशन की। Mr. Rajesh, I have earlier talked you the same thing. If they have polled 300 candidates, there may not be any ratio of selected candidate, but yes, certainly there must be 10% of the candidates which may be selected in the end. But there may not be any case. Only 5 may be selected, 100 may be selected. It depends upon the caliber, performance of the person, your willingness of the person. Okay. Sir, they might ask, will you leave DFO if you got selected in CAPF? If the candidate answers yes, whether they will check the honesty of the candidate or it can be a point of rejection. Yes, certainly it may be the point of rejection. Here you have to take this question tactfully. Sir, I don't think I have any chance of being selected there, but truly and honestly, I have taken one more attempt, and so far I have been waiting for the result of CAPF. Certainly, I got to know some mistakes in my paper too, and in the overall overview or the cutoff, I may not match the aggregate cutoff this time. So I don't think that CAPF will be my cup of tea next time. So I am wholly and solely thinking of joining DFO only. So this is how you have to answer tactfully, isn't it? Yes or no? Tell me yes or no. जिसका भी क्वेश्चन था बताओ, समझ में आया या नहीं? तो framing of the question, framing of the answer is very important. Not because what they want to listen. Yes, they want to check the organizing skills of yours, how you develop your notion or thought. They want to check the perspective also. They want to check your OLQ, officer-like quality. And not because that is evaluated and assessed in your SSB. No, not that much. But simply how you raise your concern and how you channelize the answer with respect to what has been questioned or asked. I think this is something clear from my side, Mr. Thackeray. And your surname is Thackeray, so you will be bombarded with many questions related to Thackeray. अभी ठाकरे मूवी भी आई थी मेरे ख्याल, उसके अंदर मेरे ख्याल से कौन हीरो था? नवाजुद्दीन थे. According to you, what are the top 5 qualities that a DFO should have? First, मौत से डर ना लगे. One who is have no fear of death. Second, nationalism. Third, learning attitude. Fourth, to retain and maintain the integrity and honesty in the department. And fifth, always ready to leave the family, leave the country, and leave the life anytime. These 5 qualities must be there. भारत घूमोगे, विश्व घूमोगे, दुनिया घूमोगे भैया, बहुत शानदार जॉब है. जितने लोगों ने ज्वाइन किया है पिछली बार, वो लोग भी इस सस्पिशन में थे, इस संदेह में थे कि पता नहीं हम इस जॉब को झेल पाएंगे या नहीं. उनमें से एक गुड़िया थी, थोड़ा सा हेल्दी थी, लेकिन वो भी सेलेक्ट हो गई. उसने भी फिजिकल को पार कर लिया, उसने भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया, उसकी भी अब सैलरी आने लगी है. और सैलरी का तो कभी चिंता ही मत करना इस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है? चलिए, सो दिस इज समथिंग ओवर फ्रॉम माय साइड.
if you have any question related to this, in the description box or in the lower part of this footer, there is a mail ID, beatinterview@gmail.com. If you are willing to join any batch or related something, you can have words with me. आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जाते जाते आपको ये सेशन कैसा लगा एक बार मेरे को मेल पर जरूर बताइएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज जितना भी आपने आज की क्लास या सेशन में से सीखा है, जितने भी एनर्जाइज्ड, एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक आप फील कर रहे हैं, जरूर से जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।